the end of your training at the academy and also the beginning of a new chapter of your professional career. On this auspicious occasion of your commissioning, I want to urge that you must remain focused on what the country and nation expect from you. First and foremost is loyalty to the state of Pakistan and commitment to the constitutional role assigned to armed forces, besides maintaining highest standards of training, adaptation to technology-driven modern outlook, discipline, and moral values as enshrined in our ethos and rich military culture. You will hereon embark upon an exciting yet challenging journey. I must advise you to foster virtues of courage, character, and competence. This commission demands from you the highest standards of personal and professional conduct and imposes on you an onerous responsibility to live up to the legacy of those who have served in the defense of motherland before you. It is none but you who will lead the world's best creed of devoted, spirited, and selfless soldiers of this great army to success, who dread none but Allah. These brave men with unmatched motivation, love for Pakistan, courage and conviction will always be ready to even sacrifice their lives for the dignity and honor of our beloved country. You should all be proud of the fact that the sacrifices rendered by our valiant soldiers and officers in the line of duty stand unparalleled across the militaries of the world. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. Go out now and deliver to the expectations of your nation in the best possible manner. The army imbibes the vision of our great Qaid, signifying no distinction of caste, color, creed, gender, or geography. Our ideology is based on the tenets of Islam and the golden principles of faith, unity, and discipline. We are a peace-loving nation, and being one of the largest contributors of troops to the United Nations peacekeeping missions is a testament to this fact. As part of the state policy, Pakistan remains averse to bloc politics and the damaging effects of global power contestation. We continue to believe in cooperative and harmonious coexistence with all countries, especially our neighbors. We also welcome recent regional engagements and peace overtures and hope that it will have positive impact on peace and tranquility in the region and beyond. To this end, in line with the golden principles of our religion, we abhor conflict, and consistent with our policy, we want to share peace with all. However, let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity, and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. On behalf of the ranks and files of Pakistan Army, I assure the people of Pakistan that we are always ready
and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. As proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. And we firmly anchor our reliance in the promise of Allah, which is Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kasiratan biiznillah. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. Ladies and gentlemen, let me highlight that a significant effort is being made by our adversaries to affect state and societal cohesion through multiple efforts. As professional officers, you will be armed and trained to fight against visible enemies. However, I am particularly concerned about information warfare unleashed from within, from across the borders and beyond. Through self-awareness, you will have to delineate the blurring lines between perceptions and reality. However, despite all odds, Pakistan Army is amongst few in the history which has salvaged peace from the jaws of terrorism through the rightful and collective efforts of the Pakistani nation as a whole. We have defeated organized terrorism as an existential threat, but we are yet to overcome this scourge fully. There is absolutely no space for spoilers of our great enterprise. Being a strong and proud sovereign nation, we are alive to the internal and external threats and will never let any attempts of causing instability or acts of terrorism to permeate our society. Pakistan and its armed forces stand resolute to mitigate the challenges of today and tomorrow. Together with the support of this great nation, we want to signal our enemies within and beyond that armed forces of Pakistan will never shy away from any sacrifice to stabilize, secure, and safeguard the future of our next generations. Our message to those who know us well, and even to those who don't, that resolve and resilience remain the most significant attributes of our national fiber. We shall never be surprised and will do what all it takes to keep internal and external threats at bay. Remember, people are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy, and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties entrusted to us within the confines of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Ladies and gentlemen, stability, security, and peace in Afghanistan remains fundamental to our security. Pakistan's efforts to initiate and continuously support the peace process in Afghanistan have been a manifestation of our desire of a peaceful, economically integrated, and a prosperous region. No country in the world has been as hospitable to the Afghan brethren as Pakistan, and we, for the past 4 decades, have hosted almost 5 million Afghan refugees. The Pakistani nation has paid hugely in blood, toil, and treasure, and earnestly seek for enduring peace and stability
in Afghanistan. Ladies and gentlemen, most importantly, let me highlight the plight of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are subjected to brutal state oppression under one of the heaviest military deployments in the world. Pakistan firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle for basic human rights and their legitimate quest for the right to self-determination as per the aspirations of the people of Kashmir and the resolutions of the UN Security Council. The international community must realize that without a just and peaceful resolution of the Kashmir issue, regional peace will remain elusive forever. The plight of innocent Kashmiris being subjugated through blatant Indian state oppression must end. Pakistan stands firmly with the indigenous struggle for freedom by the courageous Kashmiris who have endured state oppression for decades, and we will continue to provide political, moral, and diplomatic support to our Kashmiri brothers. Dear cadets, in the end, I once again extend profound compliments to the courses being commissioned. I wish you all success in military career and a prosperous future in your personal and family lives. May Allah grant you courage and wisdom to fulfill your responsibilities in a manner befitting of your role and reputation. Ameen. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Paindabad. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब किया है। उनका कहना है कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी। उन्होंने कहा कि बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। आर्मी चीफ के इसी खिताब पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे टेलीफोन में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पे आपने पूरा खिताब सुना होगा आर्मी चीफ साहब का। क्या पैगाम आप समझते हैं, क्या मैसेज है इस खिताब में? देखें, एक तो मुझे बड़ी खुशी है चीफ आर्मी स्टाफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुफस्सल अंदाज में तमाम इश्यूज जो हैं उनको क्लियर कर दिया अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को, और अपने दुश्मनों को बड़ा क्लियर मैसेज दिया। नंबर 1 जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये है कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को आईनी किरदार की जो वाबस्तगी दी गई है उससे 100% ईमानदारी से वो फर्ज निभाएंगे। हम हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं, और ये हम हर वक्त अपने मादर वल्द की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करेंगे। फिर उन्होंने कायद आज़म के नजरिए की बात की कि उनका नजरिया कायद आज़म का बड़ा सिंपल और बहुत क्लियर था, और वो ये था कि हम किसी किस्म की जात, रंग, नस्ल, जिन्स, इलाके तफरीक में नहीं पड़ते। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने पाकिस्तान को मिल के आगे लेके चलना है, जो एक बहुत अहम बात थी और ये हमें हमेशा इसका दर्ज भी देते रहते हैं। फिर उन्होंने जो अहम बात की वो ये थी कि अमन की हमारी कोशिशों को हमारी कमजोरी मत समझो। हमने आपको बहुत दफा बता दिया कि हमारी फौज बैटल हार्डन, फुली प्रोफेशनल, कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ आर्मी साहब, और हमने ये आपको थोड़ा सा एक इसका ट्रेलर दिखा दिया था 27 फरवरी 2019 को, जब आपने कोशिश की वहां पर बालाकोट में आने की, तो आपके जहाज भी गिराए, आपके पायलट को भी पकड़ा, उसके बाद आप उसको वापस भी किया और आपको बता दिया कि आइंदा हमारी तरफ मैली नजरों से मत देखना। ये एक अहम बात थी। और फिर उन्होंने एक और बात की कि फौज पाकिस्तान के गयूर और सर्वकफ सिपाही दुश्मन की तादाद से कभी मरगूब नहीं होते हैं। ये आई एम टेलिंग यू एज एन आर्मी एक्स आर्मी ऑफिसर ऑल्सो। हमें अपनी मुसल्लह फौज पे बहुत भरोसा है। उनका जज्बा और शहादत का जो जज्बा है बहुत आगे है। जितनी मर्जी फौज बड़ी हो, टेक्नोलॉजी हो,
لیکن پاکستان کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے اور اس میں ہم کبھی بھی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہری اور چھپے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور ضمن میں حقیقت اور ابہام میں فرق کرنا ہوگا، دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے، کیا میسج آپ سمجھتے ہیں ان الفاظ میں؟ دیکھیں، یہ ایک سب سے اہم میسج ہے اور یہ میرے خیال میں ہماری پوری قوم کو سمجھنا چاہیے۔ جب میں قوم کہتا ہوں اس میں عوام بھی ہے، اس میں ہماری انٹیلیجنسیا بھی ہے، ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، ہماری حکومت بھی ہے اور ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس وقت پاکستان پہ صرف دہشت وار کا ہمارے دشمن نے اٹیک کیا ہوا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ ریلائز کیا کہ فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے، دے آر میش ٹوگیدر، ان میں کسی طریقے سے دراڑ ڈالو، فوج کو کمزور کرو اور پھر اپنے عزائم پورے کرو، جیسے لیبیا میں ہو گیا، عراق میں ہوا، سیریا میں انہوں نے کر لیا۔ لیکن کیونکہ مسلح افواج نے دشمن دہشت گردی ختم کر دی، جو 51 کنٹریز نیٹو کی نہیں کر سکی افغانستان وہ ہم نے کر دیا۔ جب سے انہوں نے ریلائز کیا کہ فوج کو کمزور کرو، فوج کمزور کبھی نہیں ہو سکتی جب تک اس کو عوام کی سپورٹ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری عوام اس بات کو سمجھتے ہیں۔ لڑائی یو فائٹ ایز اے نیشن، یہ ایک انہوں نے بات کی ہے اور میرے خیال میں اس پہ کسی کو بھی جو خیال نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اندرونی جو ہمارے دہشت گردی ہے اور سہولت کار جو ہے، ان کو پاکستان میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے بڑے شفاف الفاظ میں بات کی ہے۔ اور تھرڈ بات کی کشمیر کے اوپر کہ کشمیر پاکستان کے لیے اور مسلح افواج کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ جب وہ چیف آرمی صاحب سب سے پہلے جب پروموٹ ہوئے تھے تو وہ وہیں کشمیر میں گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ کشمیر سب سے پہلے پاکستان کے لیے اہم ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس کے لیے ہر قسم کی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور سیکنڈ انہوں نے کہا تھا کہ کسی حالت میں بھی پاکستان کی طرف میلی نظر سے مت دیکھیں۔ ہمارے پاس اپنی منیمم اسٹریٹجک ڈیٹرنس اور ٹیکٹیکل ڈیٹرنس ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہیں، ہماری فوج بہت ہی بیٹل ہارڈنڈ ہے، ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ایک امپریشن جو دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹینک آبسولیٹ ہیں، ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹولی ہم بہت کمزور ہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ ہم جب لڑائی ہوگی نہ کہ ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم لڑائی کو دشمن کے علاقے میں لے کے جائیں گے۔ یہ بھی انہوں نے بہت کلیئر باتیں کی تھی۔ پھر انہوں نے افغانستان کی بات کی کہ افغانستان میں ہم چاہتے ہیں مستحکم ہو، پیسفل افغانستان مینس پیسفل پاکستان، اور کشمیر کے اوپر عالمی برادری کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ان کو خود ارادیت جو کہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کے اوپر ہے وہ ان کا حق بندہ جو اقوام عالم کو ان کو دینا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک بڑی اہم بات جو آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہی ہے، ظاہری اور چھپے دشمن کی انہوں نے بات کی ہے کہ ظاہری اور چھپے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور ضمن میں حقیقت اور ابہام میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے، تو اس پر بھی آپ کا تبصرہ چاہیں گے؟ دیکھیں، یہی میں بات کر رہا ہوں، ظاہری دشمن جو اس وقت آپ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی فوج کبھی بات کرتے ہیں، ایکس آرمی چیف نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کہا جی ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ یہ جو کنفیوژن خاص طور پہ ان حالات میں جب پہلے ہی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی باتیں غیر ذمہ داری کی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ دشمن جو ہے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو دشمن ہمارا سرحدوں کے اوپر ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن چھپا ہوا دشمن جو ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے عوام کی مدد سے اور ان کو ہم نے سنگل آؤٹ کرنا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرنی ہے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو کے آئندہ میں ایسی باتیں کرنی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہم سب نے مل کے دشمن کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ہمیں اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمسایوں سمیت تمام ملکوں سے بقائے باہمی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہماری امن کی کوشش کو کمزوری کی علامت نہ سمجھا جائے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ جنرل عاصم منیر نے مزید کہا کہ دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے، عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔
अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। ये कहना था आर्मी चीफ का, जो काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और इब्हाम में फर्क रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब किया है, उनका कहना था कि रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। हमारे लिए आवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में मजीद कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काकुल में अपने खिताब में यह भी कहा कि बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़मन में हकीकत और इब्हाम में फर्क रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़मन में हकीकत और इब्हाम में फर्क रखना होगा। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में मजीद कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और इब्हाम में फर्क रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है और कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 147वीं पासिंग आउट परेड हुई है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने खिताब भी किया है जिसमें उनका कहना था कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है।
अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा कि हमसायों समेत तमाम मुल्कों से बकाए बहमी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी की अलामत ना समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में मजीद कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम मुदायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। कश्मीर के मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में यह भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो काकूल में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 147वीं पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ ने कहा कि अब मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासर करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काकूल में अपने खिताब में यह भी कहा कि दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में यह भी कहा कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम मुदायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में यह भी कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। कश्मीर के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 147वें पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़मन में हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़मन में हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमसायों समेत तमाम ममालिक से बकाए बहमी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी की अलामत ना समझा जाए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम मुदायम रखा जाएगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है, जिसमें जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं है। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए, उनकी तारीखी जद्दोजहद और हक खुद इरादियत के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आलमी बिरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखेंगे। सरबराह पाक फौज का कहना था कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार
डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। उन्होंने कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने फराइज को निभाने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 147वीं पासिंग आउट परेड हुई और आर्मी चीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ की पीएमए आमद पर कमांडेंट पीएमए ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हमसायों समेत तमाम ममालिक से बकाए बहामी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी की अलामत ना समझा जाए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। आर्मी चीफ जो काकुल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काकुल में अपने खिताब में कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में यह भी कहा कि दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़मन में हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। अफगानिस्तान से मुतालिक भी उन्होंने खिताब किया और कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। कश्मीर से मुतालिक अपने खिताब में कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब किया है। उनका कहना है कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ ने कहा कि अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हमा वक्त तैयार है। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 147वीं पासिंग आउट परेड हुई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस पासिंग आउट परेड के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद भी दी। आर्मी चीफ की पीएमए आमद पर कमांडेंट पीएमए ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब भी किया और कहा कि हमसायों समेत तमाम ममालिक से बकाए बहमी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी की अलामत न समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काकुल में अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि
افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیر سے متعلق بھی انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ افواج پاکستان کے غیور اور سربکف سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مروب نہیں ہوتے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر خطاب کر رہے تھے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور اس موقع پر آرمی چیف نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس اور ان کے والدین کو مبارکباد بھی دی، اور آرمی چیف جب پی ایم اے پہنچے تو ان کی آمد پر کمانڈنٹ پی ایم اے نے ان کا استقبال بھی کیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہے۔ پہلی اور اہم ذمہ داری ریاست سے وفاداری اور پاکستان کے مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ آرمی چیف نے اپنے اس خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں، کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں۔ امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ واضح طور پر کہا کہ امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کاکول میں اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہے۔ بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں قائم امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ظاہری اور چھپے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور اس ضمن میں حقیقت اور ابہام میں فرق رکھنا ہوگا۔ دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ظاہری اور چھپے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور اس ضمن میں حقیقت اور ابہام میں فرق رکھنا ہوگا۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا۔ ریلا دادا جان کو کھانا پڑے گا۔ جلدی کھا لیجیے۔ کپڑے تو خردرے ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں، نیا سرف ایکسل، یہ ضدی داغ نکالے پر ان کے سافٹ پرلز رکھے کپڑے نرم و ملائم۔ نیا سرف ایکسل۔ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے روز کچھ چوائسیز کرنی پڑتی ہیں۔ تھوڑا ہیلدی کھانا، تھوڑی سی ایکسرسائز اور روز 2 کپ لپٹن گرین ٹی۔ انٹروڈیوسنگ لپٹن گرین ٹی all new blend in 6 delicious flavors. 2 cups every day for healthy living. یو فون 4G سپر کارڈ مہینہ ختم ہو جائے لیکن بے فکری چلے نان سٹاپ ڈیٹا اور ان لمیٹڈ کالنگ منٹس کے ساتھ۔ کرو دل کھول کر اسٹریمنگ، ڈاؤن لوڈنگ، سوشلائزنگ بے فکری کے ساتھ۔ تو ابھی اپنا فیوریٹ سپر کارڈ لوڈ کرو، کیونکہ پاکستان کے بیسٹ 4G نیٹ ورک یو فون 4G کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو۔ گولڈن پرل بیوٹی کریم، حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ پاپا بیگ، پاپا می۔ گڈ جاب۔ اتنی اسٹرانگ کیونکہ ہمارے دانت اسٹرانگ ہیں۔ دانت؟ سوچو یہ ہمارے دانت ہیں، دانت اسٹرانگ ہوں گے تو اچھے سے چبائیں گے، باڈی کو ملے گا پورا نیوٹریشن۔ اسی لیے کولگیٹ میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن دانتوں کا کھویا کیلشیم لوٹائے۔ جب دانت اسٹرانگ تو میں اسٹرانگ۔ کولگیٹ اسٹرانگ ٹیتھ۔ ارینا گولڈ بیوٹی کریم جلد کو نرش اور پالش کرے۔ مائی میریکل گلو۔ میں ان رنگوں کو دیکھتی نہیں، سن سکتی ہوں، جی سکتی ہوں۔ نیپون پینٹ کے ساتھ۔ نیپون پینٹ، ایشیاز نمبر 1 پینٹ برانڈ۔ لائٹ اینڈ گلو سے گلوئنگ اور فیئر اسکن پانا اتنا ہی آسان جیسے ABC۔ اسکن کو فیئر کرے، ڈارک اسپاٹس ہٹائے، اسکن کو دے الٹرا HD گلو۔ لائٹ اینڈ گلو اینڈ لائٹ اپ یور ورک۔ کنور پارٹی پیک اب 20 روپے کی بچت کے ساتھ۔ مارے گئے۔ گولڈن پرل ڈیلی آئل کنٹرول فیس واش، لو یور اسکن۔ نیو لپٹن کا بہترین تیز ذائقہ، دنیا کے بہترین باغات سے چنی اعلیٰ ترین پتی سے بنے۔ نیو لپٹن یلو لیبل کا بیسٹ ایور بلینڈ جو دے بہترین تیز ذائقہ۔
गाढ़ापन और ताजा दम खुशबू। इंजॉय करें न्यू लिप्टन का बेहतरीन तेज जायका। Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream, Advanced Hair Removing Formula, स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती। Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक। 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream, Advanced Hair Removing Formula, स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती।